جیسے کہ یہ قافلہ پہنچا اور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روک دیا اور کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے والوں نے دریائے فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے۔ یزیدیوں کی جانب سے تکالیف دینے کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ 7 محرم الحرام کو آپ کے خیمے دریائے فرات سے ہٹا دیے گئے۔ 9 محرم الحرام کو یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور یزیدی فوج سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ جواب ملا، ابن زیاد کا حکم ہے، آپ لوگ اس کی بات مان لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے جواب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کہو ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات بھر ہم نماز پڑھیں اور دعا و استغفار کریں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تو انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ان سے خطاب فرمایا، خدائے رحمان تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت ہے۔ میں تم کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی تم پر الزام نہیں۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بھانجے سب نے یک زبان کہا، اے امام کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا تعالیٰ ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ پھر آپ کے ساتھیوں نے کہا، اے امام ہم اپنے ہاتھوں، اپنی گردنوں اور اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا اور اس طرح میں اپنی جان آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز و دعا اور توبہ و استغفار میں ساری رات گزار دی اور اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دیں تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا فجر کی اذان کہو، 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوکھے ہوئے گلے سے رقت انگیز زندگی کی آخری اذان کہی۔ پھر تمام اصحاب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج 6 ماہ کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم میں تیر پیوست ہونا تھا۔ آج حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کو قربان کرنے کا دن ہے۔ آج خاندان رسول ہاشمی کے بھوکے پیاسے شہزادوں کے خون سے زمین کربلا کو سرخ ہونا تھا۔ 10 محرم الحرام کی صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور تقریر فرمائی، اے لوگو میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے غریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کو جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے؟ کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال ہلاک کیا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ ان ظالموں سے کوئی امید نہ تھی مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ دستور عرب کے مطابق پہلے انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کو مخاطب کر کے فرمایا، کون ہے جو آج گھرانہ اہل بیت کی مدد کرے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان سن کر خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے اس سے پوچھا، اے ہر تم تو کوفہ والوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص ہو،
तुम्हारी बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं, इससे पहले तुम्हारी ऐसी हालत कभी नहीं देखी गई। ये सुनकर हजरत हुर फरमाने लगे, मेरे एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ दोज़ख है, मुझे आज इसी वक्त दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। फिर अपने घोड़े को ये कहकर आगे बढ़ाया कि हो सके तो जन्नत ही में जाना चाहिए। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। दवाए दर्द इसिया पंजतन के दर से मिलती हैं, जमाने में यही मशहूर हैं दारुश शिफा वाले। हजरत हुर रदी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पहुंचे और नवासाए रसूल से अर्ज के हुजूर, मैं आपका मुजरिम हूँ, मैं ही आपके काफिले को घेर कर मैदान करबला तक लाया हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अगर मैंने आपका साथ दिया तो क्या क़यामत के दिन आपके नाना जान की शफाअत मुझे नसीब होगी? ये सुनकर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ तेरा रब तुझे माफ कर देगा और तुझे मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होगी। ये सुनकर हजरत हुर रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान कारजार की तरफ बढ़े और ऐसे दीवाना वार लड़े कि यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटते हुए आखिरकार जख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए। हजरत हुर रदी अल्लाह तआला अन्हु असहाबे हुसैन के पहले शहीद थे। अब एक मुजाहिद लश्कर हुसैन से निकलता और एक यजीदी लश्कर से निकलता, आपके जानिसार दुश्मन की सफों की सफे उलट देते, यजीदियों को वासले जहन्नम करके और फिर खुद भी जामे शहादत नोश करके नवासाए रसूल के कदमों पर निसार हो जाते। एक एक करके सारे साथी जामे शहादत नोश कर गए। अब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान के अफराद की बारी थी। इनके चेहरे तमतमा रहे थे, भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था। हजरत अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हम शक्ल मुस्तफा और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के जवान बेटे हाज़िर खिदमत होकर अर्ज करते हैं, अब्बा जान अब मुझे इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी पेशानी पर अलविदाई बोसा लेते हुए जवा साल बेटे को सीने से लगाते हुए दुआ देकर मक्तल की तरफ रवाना किया। बेटा जाओ अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करो। हजरत अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु शेर की तरह मैदान जंग में आए और ऐसे हमला आवर हुए ऐसा लगता था कि यजीदी फौज पर कहरे खुदाबंदी नाजिल हुआ हो। दुश्मनों की सफों की सफे उलट रहे थे। अचानक प्यास ने सताया तो अब्बा जान की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, अब्बा जान सिर्फ एक घुट पानी मिल जाए, मैं एक यजीदी भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेटा मैं तुम्हें पानी तो नहीं दे सकता, अपने प्यासे बाप की सूखी हुई जबान चूस लो, शायद कुछ तस्कीन हो जाए। हजरत अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अब्बा जान की सूखी हुई जबान चूसी, एक नया हौसला मिला और पलटकर फिर यजीदी लश्कर पर हमला कर दिया। अचानक लड़ते लड़ते आवाज दी, अब्बा जान आकर मुझे थाम लीजिए, आपका अली अकबर सवारी से गिर रहा है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि जवा साल बेटे की शहादत की घड़ी आ गई है। दौड़कर हजरत अली अकबर की तरफ आए, करीब होकर देखा तो शहजादा अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर जलवागर थे। लश्कर यजीदी के किसी बदबख्त सिपाही का नेजा हजरत अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के सीने में पैबस्त हो चुका था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर जलवागर हो गए और अपने जख्मी बेटे का बोसा लिया। हजरत अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अब्बा जान अगर ये नेज़े का फल सीने से निकाल दे तो फिर दुश्मन पर हमला करूं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी गोद में ले लिया, नेज़े का फल खींचा तो सीने से खून का फव्वारा बहना शुरू हुआ और रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर गई। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब साल बेटे की लाश को देखकर अर्ज करने लगे, ए मालिक और मौला मैं इस हाल में भी तुझसे राजी हूँ, तो भी मुझसे राजी हो जा। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नजरें उठाई तो सामने इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के लख्ते जिगर हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से इजाजत लेकर तलवार लहराते हुए निकले और शेर की तरह हमला आवर हुए और यजीदियों को वासले जहन्नम करने लगे। यजीदियों ने जब ये देखा तो चारों तरफ से हमला कर दिया। किसी बदबख्त ने हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर तलवार मारी। आपने आवाज दिया, चचा जान, और चकरा कर जमीन पर तशरीफ ले आए।
आए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए आए और आपकी लाश को अपने सीने से लगा लिया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु शदीद गम में डूबे हुए थे कि अचानक खेमों से पाक बीवियों की आवाज आई, ऐ इमाम अपने नन्हे शहजादे अली असगर को ले जाए, प्यास की वजह से बहुत तकलीफ में है, अब तो ये रोता है तो इसकी आवाज भी नहीं निकलती। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नन्हे मुन्ने शहजादे हजरत अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी गोद में लिया, खूब प्यार किया और मैदान काज़ार में यजीदियों से फरमाने लगे, ऐ यजीदियों इस नन्हे मुन्ने बच्चे को देखो, ये प्यास की वजह से कैसा बिलक रहा है, ये पानी पीकर इस काबिल नहीं हो जाएगा कि तुमसे जंग करे, अपने हाथों से ही चंद कतरे टपका दो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अभी ये गुफ्तगू फरमा ही रहे थे कि एक शकी बदबख्त ने तीर मारा जो हजरत अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हुल्कूम में पैबस्त हो गया। नन्हा शहजादा अपने ही खून में नहा गया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आसमान की तरफ रुख करके अर्ज की, बारी ताला हम तेरी खुशनुदी के तलबगार हैं, मेरे शहजादे की इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आह आज मैदान करबला में खानदान हाशिमी के महकते फूल बिखरे पड़े हैं, कहीं हजरत अब्बास अलमबरदार रदी अल्लाह तआला अन्हु तो कहीं हजरत कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, कहीं हजरत अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तो कहीं हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु के भाइयों के लाशें, और कहीं वो नन्ही कली भी है जो अभी खिलने भी न पाई थी। जमीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। आज सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के फूलों ने करबला के जंगल को गुलजार बना दिया है और अपने नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के तहफ्फुज के लिए ऐसी कुर्बानियां दी हैं जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। अब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की नजरों के सामने उनके आखिरी और बीमार शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो कि मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत मांग रहे हैं। उन्हें देखकर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम बीमार हो और मेरे बाद खवातीन का कोई महरम भी होना चाहिए और तुमसे तो मेरा सिलसिला नसब चलेगा, मैं तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। कहकर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अलविदाई मुलाकात सबसे फरमाकर आपने यजीदियों के सामने मुखातब होकर फरमाया, ऐ लोगों तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उसी रसूल का इरशाद है जिसने हसन हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, तो ऐ यजीदियों अल्लाह ताला से डरो और मेरी दुश्मनी से बाज आ जाओ। अगर वाकई खुदा और रसूल पर ईमान रखते हो तो जरा सोचो खुदा को क्या जवाब दोगे, रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। बेवफाओ तुमने मुझे खुतूत भेज कर बुलाया और जब मैं यहाँ आया तो तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक किया कि जुल्म की इंतहा कर दी। जालिमों तुमने मेरे बेटों भाइयों और भतीजों को खाको खून में तड़पाया। अपने रसूल का घर वीरान करने वालों अगर क़यामत पर ईमान रखते हो तो अपने अंजाम पर गौर करो और अपनी आक़िबत पर नजर डालो, फिर ये सोचो कि मैं कौन हूँ, किसका नवासा हूँ, मेरे वालिद कौन है, मेरी वालिदा किसकी लख्ते जिगर है। जालिमों अब भी वक्त है, शर्म से काम लो और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो। मोहतरम हजरात, यजीदी इतने शकी और बदबख्त थे कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बातों का उन पर कोई असर न हुआ। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु भी जानते थे कि इनके दिल निहायत सख्त हो चुके हैं, मगर वो अपना फर्ज पूरा कर रहे थे कि कहीं महशर में कोई यजीदी ये न कहे कि हमें किसी ने समझाया न था। नवासा रसूल करबला के मैदान में तन्हा खड़े हैं और होठों पर तिश्नगी के कांटे चुभ रहे हैं, आसमान से सूरज आग बरसा रहा है। आज फुरात का पानी हर शख्स चरिंद परिंद इंसान जानवर सबके लिए आम है, मगर नवासा रसूल को पानी पीने की इजाजत नहीं है। शेर खुदा के शेर अपने तमाम असासे लुटाने के बाद भी इस्तिकामत की तस्वीर बने हुए हैं, ईमान की रोशनी आंखों से झलक रही है, चेहरा अनवर पर एतमाद का नूर बिखरा हुआ है, घोड़े पर सवार है, शहादत की तैयारी है। ऐ जमीन वालों जी भर के देख लो नवासा रसूल को, इसके बाद ये नूरानी मुखड़ा कोई ना देख सकेगा। आज आखिरी दीदार कर लो, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु बजाते खुद तलवार हाथ में लेकर दुश्मनों से मुकाबले के लिए निकले। यजीदी असाकर पर खामोशी छाई हुई है, फर्जंदे शेर खुदा का सामना करने से हर कोई कतरा रहा है। अलगरज के आपने हमला शुरू कर दिया, जो आपके सामने आया आप उसको तहे तीग करते गए, यहाँ तक के बेशुमार यजीदी आपने वासले जहन्नम किए। 22,000 यजीदियों का मुकाबला तनहे तना भूखे प्यासे करते रहे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत और जुरअत
और इस्तिकामत देखकर यजीदी फौज ने इनफरादी जंग बंदी कर दी और एक बदबख्त ने आवाज दी, देखते क्या हो, तीरों की बारिश कर दो। तीरों की बरसात में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म अतर छल्ली हो गया। जख्मों से चूर चूर इमाम आली मकाम पर चारों तरफ से हमला कर दिया गया। फिर आपको चारों तरफ से दुश्मनों ने नरगे में ले लिया। इमाम आली मकाम जख्मों से चूर चूर अपनी मुबारक सवारी से नीचे तशरीफ ले आए। अब जिंदगी का आखिरी लम्हा आ पहुंचा। इमाम आली मकाम ने दरियाफ्त किया, कौन सा वक्त है? जवाब मिला, नमाज का वक्त है। फरमाया, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। ए इमाम, आपकी अजमतों को सलाम। जिंदगी के इन आखिरी लम्हात में इंसान अपने बहन भाई और अपनी बीवी अपनी औलाद से मुलाकात की ख्वाहिश करता है, मगर आपने ऐसी कोई ख्वाहिश न की, बल्कि नमाज पढ़ने की ख्वाहिश की है, अपने रब की बारगाह में सजदा करने की ख्वाहिश की और हमें पैगाम दे गए कि ए मेरे नाना जान के उम्मतियों, कैसा ही कठिन मौका आ जाए नमाज न छोड़ना। रिश्ता खुदा से अहले वफा तोड़ते नहीं, मर जाते हैं मगर नमाज छोड़ते नहीं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खून आलूदा मुबारक हाथों से तयम्मुम फरमाया और नमाज शुरू कर दी। जब आप सजदे में गए तो बदबख्त शिमर आगे बढ़ा और इमाम आली मकाम के सरे नाज को तने अक़दस से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस गर्दन के बोसे महबूब खुदा लिया करते थे, उस गर्दन पर तलवार मारी गई। ये गर्दन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कटी या बोसा गाहे मुस्तफा कट गई। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह साबित कर दिया, मर्द हक बातिल से खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। करबला वालों ने दीन की सरबलंदी की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करके हमें ये सबक दिया कि अगर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जान की कुर्बानी देनी पड़े तो इससे कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। घर लुटाना, जान देना, कोई इनसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत, कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत ए हुसैन। मिल्लत इस्लाम को मिलता है कि दरसे हयात, कैसे भूले हम तेरा योमे शहादत ए हुसैन। 10 मुहर्रमुल हराम हुसैनियत की फतह और यजीदियत की शिकस्त का दिन है। 10 मुहर्रमुल हराम हक की फतह और जुल्मत की शिकस्त का दिन है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।